नमस्कार दोस्तों, आप हैं जम्मू भारत पर। मैं हूं कुलवंत मारवाल। आज के इस सेशन में क्लोज स्कूल डिक्लाइन और इफेक्ट ऑन लिंग्विस्टिक स्किल्स we will be having two excellent panelists. Whenever I thought of designing this show, the two names that first came into my mind were Mr. Rajesh Rathore, currently principal at Shri Universal School, Jammu and Kashmir, and Mr. Narendra Kumar Marwal from Shri Vijayanagar, Rajasthan. राजेश सर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की क्लिष्ट भाषा के जानकार हैं। नरेंद्र सर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में संवाद करने की क्षमता रखते हैं। आज के सेशन का उद्देश्य ये है कि जो स्कूलों के ऑनलाइन जाने की वजह से हमारे बच्चों में जो भाषा की विविध शैलियां हैं, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, इवन सुनना हो, द इफेक्ट ऑन द लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, उन पे स्कूलों के बंद होने के क्या दुष्परिणाम है, उनको इंप्रूव करने के लिए आगे जब स्कूल खुलेंगे ऑफलाइन मोड में तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहली टिप्पणी राजेश सर आपसे चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन पीरियड रहा है 2 महीने का, 2 साल का, सॉरी, इसकी वजह से बच्चों में जो आप कमियां देख पा रहे हैं अभी लैंग्वेज के अंदर, उनकी स्पीकिंग स्किल्स में, उनके रीडिंग स्किल्स में, वो क्या क्या है, पहली टिप्पणी सर। First of all, I express my sincere thanks to Kulwant sir and the organizing committee of this wonderful webinar which is being conducted today. And a very, very topical, this question you raised. In these 2 years, COVID has really caused a lot of havoc in the life of children. And maybe because of screen time. Screen time is a great challenge for everyone, whether it be teachers or students. So that way, after attending classes during school hours, they are really finding it very difficult to devote more time to reading. Whereas in the school, because most of the school libraries are so well stocked, so rich. So children are really not getting the right kind of mindset or the environment to just nourish their soul with great authors and their masterpieces. So all the 4 components of language acquisition, means reading, writing, speaking, and listening, got very badly affected. Undoubtedly, teachers are sharing that children are not able to unmute their mics or turning on their cameras, because at times we feel that children are not also very well prepared. And as we know, great schools, now of course I would like to come to the solution part. Great schools, what they do, they instill that spark in children from the beginning, that they should really devote time. They should relish the pleasure of reading, which is very important. And here I would really like to make reference to my previous school, that is Anandalaya. And Anandalaya Library, it has got more than, I'll say, 34,000 books in the library. 7070 magazines are being subscribed to every month, and children are voracious readers from the very beginning. From the very beginning, they have been given the mindset how many books they have read, and in their diary also they were supposed to write, last page was meant for the books read throughout the year. And they used to really feel great, this pride in sharing, I read these many books, in this year. So that's really great. And I tell you,
if children are given this kind of a mindset from the beginning, they really acquire the skills without saying. While I used to teach one section of class 12, out of 25 or 30 children, I will say 25 were writers. 25 children were writers. I was really not at all focusing on the grammar part, language part. I used to focus on the ideas, on the content, how child has expressed the emotions, how relevant, child has been in writing the answer. So that way, I think it's a need of the hour. If I come to reading part, because reading is something very important, reading can really expose a child to so many features. So that's very important when a child, and again, I always suggest students, one should be like a person in a departmental store. When we enter a big departmental store, so we take a trolley or we take a basket, and after that, whatever be of our liking, we start picking things, we start collecting things in our trolley. Likewise, when a child reads any book, child should have a diary. Child must jot down all the good words, phrases, collocations, means adjectives which qualify nouns. And I've seen great authors, the way they play with the words. Like these days, I'm reading Barack Obama and his book, it's amazing. So I'm just highlighting those phrases, I'm highlighting those sentences which really catch my fancy. And I feel, oh my God, what a wonderful expression. So it's very important. Children should read a lot, they should write also. And they must make it a point that whenever they write something or whenever they speak, all such words, phrases, expressions, variety structures, they must make those items a permanent part of their own expression. So that is very, very important. So that way, I'll request all the teachers to ensure that children should really be indoctrinated from the very beginning, that they should love reading. So that's very important. So reading is something very important. When a person reads, it broadens the horizon of perception or thinking. One, of course, because as we know, reading, it's not only the fiction, reading may be of hard facts. When we read, this magazines, because I've seen many people are very fond of magazines. They read Yojana, they read, the India Today or Frontline, The Week, so many magazines. And when a person is very well informed, it's pleasure. You discuss anything. And I really feel great when principals of schools and teachers, they inspire children to expand the ambit of their knowledge. When they tell children, okay, fine, so like India's space program, if one knows, one can speak. India's nuclear program, if one has the knowledge, only then person can speak. India's defense preparedness, the comparison of the arsenal of India and Pakistan, so many things. One should know good deal about maybe the comparison of India and China on 70 parameters. So that way, I'll say knowledge is power. Children will have to understand that knowledge is power, and linguistic skills, whether it be the language, whichever be the language, English or Hindi. If one is reading a lot, writing a lot, listening a lot, and speaking a lot, because speaking is also something very important and very truly said by Sir Francis Bacon, father of English essays, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. And I tell you, for improving my writing skills, what I do, I read, the judgments of Supreme Court judges, different benches, right? So Supreme Court online, right? Supreme Court online, and judgments
just spread over, I'll say 600 pages, 700-page judgment, and I read. And really, they say that no part of the judgment should really be misinterpreted. That's the reason. At times, their sentences are expanded to 60 lines, 70 lines, and I'm amazed. These judges of our country, a judiciary, they are one of the finest writers of the country. So I will say that's really amazing, because one has to make conscious efforts. And here I will suggest even teachers should be outstanding writers. When I was a teacher, I used to make it a point, whenever I used to give children some extrapolatory questions beyond the text, I used to write myself. I used to carry my diary with me and I used to write. And after that, I used to give that, to my PA to type it out, maybe while I was vice principal. And then I used to send this printout to the class and used to be put up on the bulletin board. So for every question given to children, I used to write myself. So that is very important. Again, I say, if teachers claim to have outstanding grip over the language English, they must express through their comments. यार आप लिख के दिखाओ किसी बच्चे की नोटबुक में, एक ऐसा आप कोई टिप्पणी लिखो कि बच्चे के दिल को छू जाए. आप कुछ ऐसा लिखो, एक पूरा वाक्य लिखो. आप जरूरी नहीं कि एक शब्द लिखो, गुड लिखो, वेरी गुड लिखो, एक्सीलेंट लिखो. राइट वन कंप्लीट सेंटेंस. Child will feel connected. This is what I tell people on Facebook. Any big achievement, congrats, congratulations. Another set of 20 people will write heartiest congratulations. Then another 20 with heartiest congratulations, 2-3 flowers. I write 20 lines. So that person should read, person should feel connected. कुछ अंदर से गुदगुदी होनी चाहिए, जिसका कोई अचीवमेंट हुआ है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो कुछ तो ऐसे 10, 20, 50 कमेंट्स हों, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं हों, जो कि कम से कम 10-12 पंक्तियों की हो, जिसको पढ़ने के बाद वास्तव में चेहरे पे एक चौड़ी मुस्कान हो, दिल में गुदगुदी हो, और जैसे लग रहा हो हवा में कोई उड़ रहा हो. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज शायद ऐसी अभिव्यक्ति की भी बड़ी कमी हो गई है, जिसको कि पढ़ने पे ऐसा लगे जैसे कि कोई जल प्रपात हो, कोई झरना बह रहा हो. ऊपर से जब झरना बहता है, कैसे छोटे छोटे, राइट, द waterfall is broken into thousands of water droplets, and really the kind of impact being created on the audience, that is really commendable. Choicest words. Writers use choicest words. Every word is the word, not a word. So that way, when we read great authors, only then we make our expression cultivated. It is nursed over the period of time. And the way you must have really relished, stuffed items. अब कभी कभी मैं जैसे कि कहीं शादियों में जाता हूं और वहां पे बड़ी सी एक तवा है, तो तवे के ऊपर जब वो भरवा आइटम्स रहते हैं, भरवा करेले, भरवा भिंडियां, ठीक है, भरवा और आइटम्स, तो क्यों मजा आता है? क्योंकि लंबा समय उनको लगता है. इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड all the choicest spices and the kind of rich flavors which are given to the preparation, so that really makes it so relishing, so enjoyable. तो जो सूंधी उसकी खुशबू है, वो अपनी अभिव्यक्ति में हम कैसे बनाएं? कई ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं, जिनकी एक एक पंक्ति दिल को छूती है. So, my dear friends and the audience who are just watching us live, so I will just make a humble appeal to everyone, because no one can claim to have encyclopedic range of knowledge like Master Shakespeare, right? So what we can do, we can only read a lot, we can acquire skills, we can make best efforts, we can write a lot, we can speak a lot, and this is the way children, students across the country, whosoever is watching us,
So my just, in a nutshell, in one line, I'll say, make your best efforts. And today only I suggested someone said, sir, I want to prepare for civils. I said, first of all, you start writing like a columnist. You focus on editorial page. These days, even e-newsletters, e-newspapers are available. You just go for the Hindu, the Times, the Tribune, or uh, Indian Express. All these newspapers are available. Download the app and just go through. Read, some 5, 7 articles and write one article review. Read 4, 5 newspapers editorial comments. Write the précis of to 2 editorial comments. Read letters to the editor. I love, because entire letter is one sentence. So that is the highest form of expression. From Hindu or any newspaper, even I find the Tribune, letters are amazing. I don't know. Sometimes I wonder whether this is the expression of the person who has raised the issue, or it is the magic of the pen of the editor, because he has given that magical touch to the question. That's really amazing. So, my dear students and youngsters, whosoever is watching the program, I will say, make conscious efforts. कहते हैं जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल दिखाई देगा. तो my dear friends, acquiring skills is not really just possible in a day, right? One has to burn one's midnight oil. And for that matter, I would also like to suggest, have the dictionary of idiomatic phrases. Colin Coble's dictionary of idiomatic phrases. If someone says, okay, fine, in one go, just you tell me 50 idiomatic phrases. Oh, challenge. But again, play ducks and drakes. Out of frying pan into the fire. Right? Having butterflies in the tummy. Alpha and omega. At 6s and 7s. इनका मतलब नहीं मालूम हो गया. Right? On the tenter hooks. In this way, I can tell you 500, right? So I'm saying, whenever the necessity arises, you just make use, and they really embellish the language. One more thing I would like to share, way back when I appeared in SSB of CDS Command Defense Service and I couldn't make it because of my poor grip over the language. I was a science graduate, then I shifted to humanities and I decided to do masters in English. So that time what I had done, I had become so crazy. I had taken not less than 20 chart papers and I had put, the kind of columns, put vertical lines. On one side of the wall, all the nouns. Other side of the wall, some 8 to 10 chart papers of adjectives, and front wall 8 to 10 chart papers of verbs. This is the reason I keep discussing with children. Okay, fine, children, let's have one game. Okay, I'll give you one word and you have to change that. Maybe, for example, noun form, you have to change into adjective derivative or verb derivative. Conversion. So conversion should be really something which children really enjoy a lot. Okay, fine. I give some word and I ask them to convert. So rich vocab, synonyms. What is your collection of synonyms? Antonyms, vilom shabd. Okay, fine. Any word given, thesaurus, like melodious, euphonious, silvery, silver sounding, right? So in this way, mellifluous, oh my god, kya words hai? Euphonious, mellifluous, right? So these are the words for melodious, right? And this way also, teachers should really tell children about phonetics, the art of pronunciation, which is very important, like melody, melodious. So this way, so there are really so many words, and it's it gets changed with the change of, again I'll say, a part of speech,
right? So if it is noun, then different pronunciation, adjective, different pronunciation, maybe for verb, it's different pronunciation. So that's really something very important. Drama, dramatic, dramatize, right? So if I make, the kind of, break it into its elements, then students, when I discuss with them phonetics, and I write on the board how word will be pronounced, then they feel, yes, this is the difference. It's very, very technical. So I feel one has to make efforts. One has to make efforts. जैसे कि बर्फी बनती है तो उसको हम दूध को पकाते हैं और चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, फिर उसमें सोंधापन आता है. So, my wonderful audience, I will say, if you want really something beautiful dish to be prepared, then you have to have patience. You should have really great, sense of commitment and dedication. Work for longer hours over the period of time. Only then you feel yourself into that position that you have acquired mastery of the language. So that is really required that way. Yeah. मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन स्कूल का. सर ने मुझे बोला था रोज एक पेज इंग्लिश में लिखना है, एंड दैट्स हाउ my language is prepared. So I'm thankful to Rajesh Rathore sir for giving his words. These are the words which we should inculcate in our teaching sense. We should inculcate in our speaking skills. We should inculcate in our reading habits. That should be. Okay, moving on to the next part of this discussion, we have with us Mr. Narendra Kumar, Principal of Mahatma Gandhi Government School, Shri, Vijayanagar, Rajasthan. So, what do you think, sir? आप क्या सोचते हैं कि जो स्कूल अभी ऑनलाइन मोड में शुरू है, इनकी वजह से हमारे बच्चों की भाषा पे, उनके भाषा के स्तर पे क्या गिरावट आई है, और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आगे इंप्रूव करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? नरेंद्र जी, आपके पास आते हैं. First of all, I would like to thankful Kulwant sir, and I would like to be known as a Sanskrit speaker or Hindi speaker, because as I think that the Sanskrit was first language. तो जहां आप बात कर रहे थे कि कोविड की जो सिचुएशंस थी, उस दौरान जो परिस्थितियां बदली, उसमें भाषा के स्तर पे क्या किस तरह के चेंजेस आए, किस तरह की गिरावट आई, कुछ किस तरह के परिवर्तन हुए, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा. हमें ये उससे पहले ये समझना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट है या एनीवन पर्सन वो भाषा को ग्रहण कैसे करता है. देखिए, भाषा जब हम लेते हैं तो इसको यूं समझना चाहिए कि भाषा एक नेचुरल प्रोसेस है भाषा को सीखने के लिए. और हमारा जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, नॉलेज जो है, हमारी जो साइंस है वो ये कहती है कि फ्रॉम 1 to 5 इयर्स के बीच का जो बच्चे का एज है, उस एज में उसके 90% जो वर्ड्स वो अडॉप्ट करता है अपने पर्सनैलिटी में, वो कर लेता है. तो इस चीज को समझना चाहिए कि भाषा ऐसी चीज है जो अपने आप से बच्चा स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर रहा है. तो इसको अगर बोला जाए यूं कि भाषा सिखाई नहीं जाती है, भाषा वस्तुतः सीखी जाती है, हमें यूं बोलना चाहिए. क्योंकि जिस भी बैकग्राउंड से बच्चा है, जिस भी माहौल में हम पले बड़े हैं, उस माहौल में आसपास का एनवायरनमेंट हमें जिस तरह का मिलेगा, उस तरह के शब्दों को हम ऑटोमेटिकली रिसीव करते जाएंगे. ऐसा जब हो, इस तरह की प्रोसेस हमें पता है कि भाषा इस तरह से सीखी जा रही है, और उस माहौल में टीचर क्या करता है, बच्चे के शब्दों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में टीचर प्रोवाइड्स ओनली अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. मान लीजिए मैं संस्कृत का टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बच्चे को हेल्प कर रहा हूँ उसके सीखने की प्रोसेस में. आई एम ओनली हेल्पर देयर.
तो जब इस तरह की परिस्थितियां आई, जब आप बात कर रहे थे कि कोविड की स्थितियां हुई, तो हुआ क्या, हमारी फिजिकल जो रियल क्लासेस थी, एक्चुअल क्लासेस जो हम बोलते थे, वो डैमेज हो गई। फिर हम लोग स्विच करके ऑनलाइन क्लासेस के मोड पे आए। तो उन चीजों को कहीं हम लोगों ने मिस किया कि जिस तरह से सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें एक 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 रिलेशन बिल्डअप होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। जब उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, उन दोनों के आपस में बातचीत होती है, बहुत सारे इंप्रेशंस टीचर के होते हैं। तो उन सब को मिला करके फिर एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है, वो चीज़ों को लर्न करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जब हम नए मोड में आए, जब हम लोग ऑनलाइन मोड पे गए लर्निंग प्रोसेस में, तो उन चीज़ों को कहीं न कहीं हम लोगों ने मिस किया कि टीचर का और स्टूडेंट का जो जिस तरह का अटैचमेंट, एक रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उस और या यूँ कह सकते हैं उस स्तर पे नहीं हो पाता जितना रियल क्लासेस में हो पाता है। उसकी वजह से क्या हुआ, उस बच्चे की भाषा के जो स्तर था उसमें काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली, बहुत सारे शब्द बदले। और अभी जैसे सर बता रहे थे कि हमने जो एक अभ्यास जिसे बोलते हैं, एक्सरसाइज़, प्रैक्टिस जो चीज़ होती है, वो कहीं न कहीं छूट गई। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तरह के ड्रॉबैक्स हम इसको बोल सकते हैं कि जितना समय बच्चे को भाषा को ग्रहण करने के लिए दिया जाना चाहिए था, या यूँ मानिए जितना समय टीचर को एक एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए बच्चे के आस-पास क्रिएट करना था, वो हम लोग नहीं कर पाए। और इन स्पाइट ऑफ दिस सोशल मीडिया, क्योंकि अभी बच्चे के हाथ में आप एक आपने एक डिजिटल इक्विपमेंट दे दिया है, जिसके थ्रू वो क्लास करता है। तो जिस समय आपकी क्लास नहीं है या ड्यूरिंग द क्लास, होता क्या है, बच्चे ने सोशल मीडिया से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से वो घूमना शुरू किया, तो वहाँ से कुछ नई तरह की शब्दावली, नई तरह की व्याकरण, नई तरह के शब्द उसने ग्रहण किए। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि क्लास के लेवल पे शिक्षक ने जो बच्चे को देना था, जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की प्रक्रिया, जिस तरह की भाषा वो शिक्षक देना चाहता था, उसका बच्चे के चारों तरफ जो आवरण बनता है, उस आवरण में शिक्षक के आवरण में कमी हो गई। और कुछ यूँ मानिए सोशल मीडिया है या बाहर की दूसरी चीज़ें हैं, उनका बच्चे के कवर करने का जो था कवर वो ज़्यादा हो गया। उस कारण से शिक्षक जो शब्द बच्चे को देना चाहता था, वो उस लेवल पे नहीं दे पाया। और एक और बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, हर चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। आज कोविड के दौरान जो नई स्थितियाँ बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक एक अच्छी बात जो मुझे लगा कि आज इतना कंटेंट बना डिजिटली, ई कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, और बहुत सारे टीचर एक साथ एक जब ई प्लेटफ़ॉर्म पे आए टीचर्स पढ़ाने के लिए, तो आज हमारे स्टूडेंट के पास इतनी वैराइटीज़ है, इतनी प्रायोरिटीज़ है, इतनी चॉइसेस है कि वो एक पूरे विश्व में से एक सबसे अच्छा शिक्षक ढूँढ के उससे पढ़ सकता है। सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं, हम अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात देखें, अलग-अलग सब्जेक्ट्स की बात देखें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उनको अलग-अलग चीज़ें, नई-नई चीज़ें सीखने को मिली। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो बेसिक जो प्रोसेस है लर्निंग का, उसमें आई थिंक हम लोग बहुत या यूँ मानिए कुछ उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए, उस लेवल पे शब्दों को सिखाने की जो प्रक्रिया थी, उस भाषा को हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें हम उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक अब एक रियल क्लास में हम लोग पहुँच पाते हैं। अभी राजेश जी जैसे ज़िक्र कर रहे थे एक बात का कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा सुनते हैं, जितना ज़्यादा लिखते हैं, वो भाषा को उतना ज़्यादा ग्रहण करते जाते हैं। और अभी हम लोग जिस पैटर्न पे आए, उस पैटर्न पे ये चीज़ हम लोगों ने कहीं न कहीं छोड़ दी, या बहुत इसकी मात्रा बहुत कम हो गई। इस वजह से हमारी भाषा का स्तर बहुत कम होता गया, न्यून होता गया। हमारे शब्दों का जो भंडार है वो देखिए, हमारा अभी सर से जैसे बात कर रहे थे, हमारा टीचर कितना इक्विप्ड होगा, हमारा टीचर कितना स्ट्रॉन्ग होगा लैंग्वेज लेवल पे जाकर के। तो आप हमारा टीचर हमारी क्लास के दौरान जितने शब्दों को काम में लेता है, उसमें नए शब्द कितने होते हैं?
या ये वो सिर्फ 500 शब्द हैं, 200 शब्द हैं जिनसे हम लोग साल भर तक काम चलाते हैं। एक सामान्य आदमी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन जब आप टीचर की भूमिका में हैं, क्लास में हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप नए-नए शब्द बच्चों को दें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि शिक्षक जो है वो भी अच्छा भाषा में दक्ष हो, स्किल्ड हो, उसके पास नए-नए शब्द हो, उस तरह की शब्दावली उसकी इस तरह की हो कि एक अर्थ को वो बोलना चाहता है, एक बात बोलना चाहता है, तो 50 शब्द उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि आप मेरा प्रयोग कीजिए। या ऐसा होता है कि एक अर्थ को बोलने के लिए हमें एक शब्द ढूँढना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षक ऐसा हो, जो एक बात को बहुत तरह से कह सके और इतना जब इक्विप्ड होगा, इतना जब वो स्किलफुल होगा भाषा के स्तर पे, तभी अभी जैसे राजेश जी ने बात कही थी, हम ऐसा बोले कि झरना बहता रहे। हमारे हमारी बातचीत ऐसी हो कि नई-नई चीज़ें आएँ, तो उस लिटरेचर के लेवल पे, काव्य के लेवल पे, साहित्य के लेवल पे हमारी जब भावनाएँ, हमारा एक्सप्रेशन लेवल जब जाता है और ये संभव तब होता है जब हमारे पास शब्दों का भंडार हो। हमें उस शब्दों को महसूस करने की शक्ति हो, उन शब्दों को अपना बनाने का मात्रा हो। देखिए ये चीज़ें निकल के तब आती है जब उन शब्दों के साथ हम खेलें। हम शब्दों के साथ जिएँ, हम उन शब्दों के साथ रहें, तब तब जाकर के ये चीज़ें संभव हो पाती है। और जब ये नई स्थिति आई है, तो उन्होंने हमारे ये जो रीडिंग स्किल है, लिसनिंग है, इन चीज़ों को बहुत कम कर दिया है। क्योंकि अब जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग भाषा के विद्यार्थी हैं कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग ये जो चीज़ें हैं, ये एक आउटपुट इनपुट प्रोसेस है। जितने शब्द आपने बच्चे के दिमाग में डाले हैं, जितने शब्द आपने इनपुट किया है बच्चे में, वही शब्द रिवर्स में, वही आउटपुट आना है हमारे पास में। अगर हमारा इनपुट प्रॉपर नहीं है, तो हमारा आउटपुट भी प्रॉपर नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इन नई परिस्थितियों में हमारा इनपुट कमज़ोर हुआ है, इस वजह से हमारा आउटपुट भी कमज़ोर हुआ है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग नई-नई चीज़ों को या यूँ मानिए कि बच्चे का जो रीडिंग स्किल है उसको कैसे बढ़ाएँ, उस पे काम करना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा नई-नई चीज़ें सुनने को मिले, उसको नई-नई चीज़ें पढ़ने को मिले, इस चीज़ पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। धन्यवाद नरेंद्र जी। आपकी चर्चा से ही मैं अगला प्रश्न राजेश सर को ले जाना चाहूंगा। दो पक्ष है। एक पक्ष ये कहता है सोशल मीडिया के यूज से बच्चों की लैंग्वेज डिक्लाइन हुई है। जैसे हम एज सुन एज पॉसिबल को आजकल ASAP बोलते हैं, टॉक टू यू लेटर को TTYL बोलते हैं। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि आपको इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश, इंटरनेशनल लेवल की हिंदी, क्लिष्ट संस्कृत या जो भी मातृभाषा आप यूज कर रहे हैं वो सुनने को मिल रही है। आपका क्या कहना है राजेश सर कि सोशल मीडिया के यूज से भाषा के स्तर पे कोई फर्क पड़ा है? अगर वो पॉजिटिव है तो कैसे और नेगेटिव है तो कैसे? प्लीज सर। ऑल राइट, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कुलवंत जी। यही कहना चाहूंगा कि बड़ी तपस्या की जरूरत है, बहुत तपस्या की जरूरत है, तब जाकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसके लिए वास्तव में बहुत ही प्रयास की जरूरत है, बड़े अथक परिश्रम की जरूरत है। और कुछ चीजें ऐसी कालांतर में हो जाती हैं कि उस समय तो हमें उसका विशेष महत्व समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना, साझा करना चाहूंगा, थोड़ा प्रश्न से हटकर, कि बचपन में जब मैं छोटा था, शायद कक्षा 4 या 5 में पढ़ता था, तो माताजी ने कहा कि यार ऐसा करो कि कहीं से कोई हिंदी का उपन्यास वगैरह कहीं कोई पुस्तकालय से मिलता हो तो ले आओ। तो मैं ठीक है, तो मैं उपन्यास लाने लगा और धीरे धीरे करके वो माताजी की भी बहुत ही द्रुत गति से उपन्यास खत्म करती थी। और फिर मैं सोचता था कि अगर मैं कोई उपन्यास ला रहा हूं और उन लोगों को अगर मुद्रा दे रहा हूं, अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जितनी भी देर में इस प्रश्न का जवाब दूं उसमें मैं अंग्रेजी का एक भी शब्द प्रयुक्त न करूं, जबकि मैं पिछले 26 वर्षों से अंग्रेजी का ही शिक्षक रहा हूं। तो मैं ये बस कहना चाहूंगा कि मैं भी
एक पुस्तक लेता था और बड़ी सी हमारी एक मेज थी, उसके नीचे धीरे से एकदम से घुस जाता था, और उसके बाद जो मेरा शुरू में शायद ऐसे ही मैं 10-15 पेज पृष्ठ पढ़ता था और ऐसे करके चलता गया, और उसके बाद तो इतनी द्रुत गति से, और कुलवंत भाई 12 वर्षों तक रोज एक उपन्यास का अध्ययन किया। सब कुछ खत्म हो गया, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, आप नाम लो। फिर मैंने कहा मम्मी अब खत्म हो गया। बोले कोई बात नहीं, जासूसी ले आओ। तो फिर कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, काम्बोज वगैरह वगैरह जितने थे जासूसी, सब खत्म हो गए। और लेकिन आज मुझे लगता है कि कितना व्यापक प्रभाव उन्होंने मेरी सोच पे डाला। आज भी कई चीजें एकदम ऐसी की ऐसी ही क्या नाम सामने आ जाती हैं। चीजों को जो याददाश्त, जो यानी कि उनको याद रखने की क्षमताएं हैं, आज मुझे लगता है कि मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि जो एमए अंग्रेजी से किए हैं उन्हें कुछ याद नहीं, एमए हिंदी से किए उन्हें कुछ याद नहीं। मैं तो उनसे कहता हूं कि काश मैं प्रधानाचार्य हूं पिछले 10-11 वर्षों से, मेरे पास कोई अभ्यर्थी आए साक्षात्कार के लिए और वो मुझसे कहे कि श्रीमान जी आप मुझसे क्या सुनना चाहेंगे। मैं आपको पूरी एक फहरिस्त देता हूं, आप हिंदी में क्या सुनना चाहेंगे, आप अब क्या बताऊं, अंग्रेजी में क्या सुनना चाहेंगे, आप जो कहते हैं कि कविता के जो जनक हैं जॉफरी चौसर, वहां से लेके वर्तमान समय के जितने कवि हैं, आप क्या सुनना चाहेंगे। कुछ ऐसा हो, भले ही क्या नाम 4 से 8 पंक्तियां हो। अब मैं कहूं मिल्टन सुनाओ तो बस मतलब मिल्टन चालू हो जाए, अंग्रेजी की बात करो। हिंदी में अब रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, वहां से लेके कोई भी हो, और या मैं कहूं उनसे कि सर, वो मुझसे कहे कि सर आप अटल जी का कुछ सुनना चाहेंगे, तो यही बता रहे हैं कि अटल जी का सुनना चाहेंगे, तो मैं कहूं अच्छा अटल जी का क्या आप सुनाएंगे। सर आप बताइए, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय आप ये सुनेंगे, या गगन में लहरता है भगवा हमारा वो सुनेंगे, या सर आप कोई छोटी छोटी कविताएं जैसे बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। और मैं कह दूं क्या अगला भी आपको स्टेंजा आता है, हास रुदल में तूफानों में अग्र संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा व्यापक कोश हो, कि जब धारा बिल्कुल जैसे सरस्वती के मुंह से, मैं शिक्षकों से ही कहता हूं, जैसे जीवा पर सरस्वती का वास हो, हिंदी बोलिए तो धारा प्रवाह बोलिए, लगे कि जैसे कहीं पे कोई समुद्र उफान ले रहा है, हिलोरें ले रहा है, उस तरीके से। और जहां कोमलता की बात हो तो जैसे झरना बह रहा हो, जैसे मैंने भी कहा। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। तो इनके लिए मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं पर असाधारण अधिकार की आवश्यकता है, और उसके लिए बहुत ही पठन पाठन कार्य की आवश्यकता है। और जब हमें इस तरीके की कोई लत लग जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है। मुझे याद आ रहा है हमारे मित्र जो थे लखनऊ में सैनिक स्कूल के, मैं वहां पे श्री शंभू बान सिंह जी, इस समय वो शायद डिप्टी डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश में। तो उनसे भी जब भी बात होती थी, मैं उनसे कहता था, शंभू भान सिंह जी भाई आप तो इतने विद्वान हैं, आप लिखते क्यों नहीं हैं। तो बस यही कहते थे, छूट सकती है नहीं ये आदतें यायावरी, बोले घुमक्कड़ स्वभाव है। अभी मैं कुछ पढ़ने की लिखने के लिए बैठा, तब तक मैं मित्र का एक क्या नाम वहां से कॉल आ गया, और कहने लगे कि यार एक छोटी सी गोष्ठी हो रही, आ जाओ। बस मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चले गए वहां पे। तो यहां पे मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये एक साधना है, ये एक साधना है, और इसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है शिक्षकों को जो है पूरी इस हमारी जो ये पीढ़ी है ना, इसको प्रभावित करना पड़ेगा अपने ज्ञान से। मुझे लगता है कि आज वास्तव में कमी है द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों की कमी है।
ऐसे जब विश्वामित्र, जब ऐसे गुरु हुआ करते थे कि जहां पे भाषा ज्ञान उसका प्रवाह होता था, तब जाके सब लोग प्रभावित होते, आश्चर्यचकित होते। आज भी मैं अगर हिंदी की बात करूं, जैसे कि मैं नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा बोला, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वास्तव में जब मैं कुमार विश्वास को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि काश एमए अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के पहले अगर मैंने कहीं कुमार विश्वास को सुन लिया होता तो मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी की जगह हिंदी से अपना जो है एमए करता, उसका जो स्नातकोत्तर उपाधि में उस विषय में लेता। और दोनों भाषाओं पर वास्तव में अधिकार की आवश्यकता है। मैं हर बच्चे को कहता हूं, हर विद्यार्थी को कहता हूं, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप दोनों का अगर रूपांतरण में आपको मजा आ जाए, मुझे बीच में बड़ा चस्का लग गया, 5 वर्षों तक गहन अध्ययन किया। फादर कामिल बुल्के का जो शब्दकोश था अंग्रेजी हिंदी, उसका मैंने सतत अध्ययन किया। मैं देखना चाहता था क्या ऐसा कोई शब्द जो कि जिसका मैं तुरंत फुरत अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण न दे सकूं। मैं अगर 1 घंटे भी किसी भी विषय पे अपना उद्बोधन दूं तो अंग्रेजी का एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं करूं, जबकि अंग्रेजी मेरा विषय है। पिछले 26 वर्षों से मैं अंग्रेजी में ही पठन पाठन कार्य को संपन्न संपादित कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों से ये भी कहता हूं कि बच्चों हिंदी पे असाधारण अधिकार रखो, क्योंकि शिक्षाविद कहते हैं और जो इससे भाषा से जुड़े भाषा शास्त्री कहते हैं कि मातृभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपकी जो सोच को अगर आपको नए आयाम देने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा पे आपका वरद हस्त आवश्यक है। जब आपका मातृभाषा पर असाधारण अधिकार होता है तो सारी भाषाएं आपकी ओर खींची चली आती हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो आज जितने भी श्रोतागण और दर्शकगण हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि इस तरीके का जो भाषा कौशल है हर व्यक्ति में विद्यमान है। और जैसे कि महान हमारे योगी विवेकानंद जी ने कहा, इस सारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। सब कुछ अंदर विद्यमान है, केवल उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा अपने जितने भी युवा साथी, हमारे जो विद्यार्थी इस समय कार्यक्रम से जुड़े हैं, कि अपनी अंतर्निहित शक्तियों को, अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें और बिल्कुल भाषा के ऊपर असाधारण अधिकार हासिल करें, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या है? अंग्रेजी में आप बोलना चालू करो, देन यू जस्ट स्विच ओवर टू इंग्लिश एंड आफ्टर दैट there should not be difficulty because you have read the entire range, right from Geoffrey Chaucer, father of English poetry, or for that matter Sir Francis Bacon, father of English essays, or the father of novels, whatever. So I will say down to the modern times, if someone is determined, someone is committed, dedicated, then language has to lick the feet of the practitioner, right? And yes, it was, I'll really today I would like to pay my heartfelt tribute to my wonderful teacher. So far as English is concerned, Padma Shri Raj Bisaria Saab, who is not there in the world today. So many other professors, right? Because Milton, we were taught Milton at Lucknow University by Professor R.M. Shrivastava Sahab, and we got so much inspired. I had written a 72-line poem on Satan. I had by-hearted all the 7 soliloquies of Hamlet. And people were really, oh my God, they were fed up of my presence. He will start narrating again some soliloquy. So this is what I'm saying. Some 10, 15, 20 lines of every poet, right? That should be the motto of any person who is pursuing masters in English. Why not? Someone says, okay, fine. Narrate some line from John Donne, great metaphysical poet. So person should really say, twice or thrice had I left thee before I knew thy face or name. Someone says, Wordsworth, greatest poet of nature this earth ever produced. I'll say, one impulse from vernal woods can teach you more of a man, of morals, evils, and of good than all the sages can.
यार you just, I'll say, you just name the poet कि यार सर इसका कुछ सुनाओ, right? You say सर जॉन मिल्टन का आप कुछ बताओ, so I will say okay fine. Oh my God, this is I always quote when Satan was thrown out of heaven and he was heading towards hell, and I really love this particular thing. What did he say? He is heading towards hell and he looked towards heaven and he said, farewell happy fields where joy forever dwells. Hail horrors, looking towards down. Hail horrors, hail infernal world. Receive thy new possessor, one who brings a mind not to be chained by place or time, a mind in its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Because so much is written in English and Hindi. And I feel if we are the real worshipper of Goddess Saraswati, then knowledge will flow. So through the medium of this wonderful program, I would really like to inspire all the youngsters who are watching us live right now that explore your potential, make conscious efforts, right? And as I said, as a person in a departmental store, start picking things and fill your basket with lovely words, phrases, idiomatic phrases, proverbs and maxims, right? Quotations. Why not? So they must amass a great wealth of knowledge. So, Kulwant sir, I would like to just share that one has to make conscious efforts, whichever be the language, English or Hindi or Sanskrit, any language. So, if we are making efforts, only then Goddess Saraswati, right, showers her blessings on us. So, that's the thing. We have to make our best efforts, and teachers will have to inspire. Teachers should be fluent. Teachers should have great vocabulary. Teachers should give children the sentence construction. They should just write something. They should share. For every question given by teachers to children, why not teachers should write their own answers, right? And must be pasted on the bulletin board in the class. The children see this is what I attempted. And of course, I used to do during my school, the teaching days. I used to write answers to all the questions being given to children. So in this way, only we can inspire children. So I think great efforts are to be made by teachers. Our efforts will inspire the generation. And if we as teachers are dependent on our past knowledge, whatever we studied way back during master's days, then it's of no use, right? We have to keep ourselves abreast of time. We have to quote contemporary people, whatever they are writing. So that's something very, very important. Yes, sir. थैंक यू सर. आपको सुनते तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, क्योंकि समय की मर्यादा होती है लाइव कार्यक्रम में भी और जब भी आप बोलते हैं तब भी. पर इस चीज से दर्शकों एक चीज सीखने की जरूरत है कि आपका बाइलैंग्युअल सिस्टम, आपका हर एक भाषा पे समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जिंदगी आपको किस मोड़ पे कहां लेके जाएगी. मैं तो कहूंगा हिंदी इंग्लिश भी नहीं, जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं सीखिए, जहां से सीख सकते हैं सीखिए. नरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा. सोशल मीडिया के जमाने में हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चे किताब पढ़ेंगे? जी. सोशल मीडिया के ज़माने में किताब कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अभी जो वस्तु हमारे लिए बाधक मान रहे हैं हम लोग, हमने ये माना है कि जैसे पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया में जो शब्दों का प्रयोग है, या आपने कुछ जिस तरह के एग्ज़ाम्पल्स दिए अभी, व्हाट्सएप पे हम लोग जिस तरह से बात करते हैं,
उस तरह के शब्दों की बात हुई। मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके तो आई थिंक सोशल मीडिया, और जब आप डिजिटल एजुकेशन, ई एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा उपयोग भी उसका किया जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं आजकल एक ऑडियो बुक्स का पैटर्न आया है, एक नया पैटर्न है जिसमें हम लोग अपना लिसनिंग स्किल डेवलप करते हैं, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल डेवलप करते हैं। और एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ ई बुक्स अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका सही प्रकार से हम लोग उपयोग करें, तो बुक का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वो जो कागज पे छपा हुआ है वो बुक है। आज हम लोग इतने इतने वाइड रेंज में बैठे हैं, इतनी बहुत संभावनाएं हमारे पास है कि हम विश्व की सभी जो बहुत रिच लाइब्रेरीज हैं, ई लाइब्रेरीज हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे बुक्स को डाउनलोड करके वहां से पढ़ा जा सकता है। तो सबसे जरूरत सबसे पहले इस बात की है कि जैसे अभी राजेश जी ने कहा कि परिश्रम की जरूरत है, साधना की जरूरत है। तो अगर हमारी निष्ठा है पढ़ने के लिए, अगर हमारा परिश्रम है उस काम के लिए, तो जिसको चीज को हम लोग बाधा समझ रहे हैं या अभी जो बाधा के रूप में हमारे सामने है, वही चीज हमारे लिए एक मार्ग बन सकता है। बस आवश्यकता इतनी सी है कि हम उस तरफ मुड़े। अगर हम लोग ई बुक्स की तरफ जाते हैं या हम लोग ऑडियो बुक्स की तरफ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, बहुत अच्छी चीजें उससे जुड़ी जा सकती है और एक बहुत अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और नए क्षेत्र को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी चीजें सुनने को मिली आज मुझे। विशेष रूप से कहना चाहूंगा राजेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में, जब आदमी एक 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 व्यक्ति, एक एक हमारा मन, एक दिमाग एक साथ दो भाषाओं में, तीन भाषाओं में, चार भाषाओं में हम लोग काम करते हैं, तो हमारा सीखने का, हमारे दिमाग की जो परतें हैं, मैं ये कहूँगा कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी और ज़्यादा होती है। मैं स्पेशली बात करूँगा एक उस बैकग्राउंड के लिए जहाँ हम लोग स्कूल में काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। तो जो बच्चे बाइलिंगुअल है, 2-2 लैंग्वेज में एक साथ स्विच कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो उसकी बाकी सब्जेक्ट्स में उसका जो सीखने का तरीका है, उसका जो प्रोसेस है, उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। और इस रूप में ये कहना चाहूँगा कि जितनी भाषाएँ उसे मिलती हैं और जहाँ-जहाँ उसको परिक्षेत्र मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, उसको हमें अलग-अलग भाषाएँ सीखें, हम दूसरी भाषाएँ सीखेंगे, उसकी एक अलग तरह का दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है कि जब आप 2 भाषाएँ, 3 भाषाएँ, 4 भाषाएँ जानते हैं, तो उन भाषाओं के बीच में एक तुलना करने की आपके ऑटोमैटिकली आप में एक एटीट्यूड इस तरह का डेवलप होता है, एक ग्रंथि बनाते हो आप कि अलग-अलग भाषाओं के जो शब्द हैं वो कैसे बने और आपस में उनको कंपेयर करें तो कैसे किया जा सकता है। तो हम उस समय विशेष रूप से एक मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि भाषा के जो शब्द होते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांज़ैक्ट नहीं करते हैं। वो उस भाषा का जो संस्कार है, उस भाषा की परंपराएँ हैं, उस भाषा का परिदृश्य क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, उन सब चीज़ों को भी अपने साथ लेकर के आते हैं। तो हम जब एक एक समाज, एक वातावरण, एक भाषा का जो परिक्षेत्र पढ़ा और वहाँ से जब दूसरी भाषा में जाते हैं, तो उन दोनों तरह के संस्कारों को, दोनों तरह की संस्कृतियों को, दोनों तरह के वातावरणों को हम लोग कंपेयर करते हैं। और फिर एक आदमी के भीतर एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है, जो मैं समझता हूँ कि एक सफल व्यक्तित्व के लिए, अपने आत्म-अभिव्यक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए और यूँ मानिए कि अंतिम सफलता जिसे हम जीवन की कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सबके साथ, दूसरों के साथ मिल कैसे सकते हैं, दूसरों के साथ अपना जुड़ाव कैसे कर सकते हैं। हम जहाँ बात करते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की, तो अलग-अलग भाषाओं के जो बैकग्राउंड्स हैं, वहाँ शब्दों को कैसे बोला जाता है, किस तरह के अर्थ के लिए, किस तरह के भाव के लिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग है। वो शब्द ये बताते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं,
वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। अब यूं कहा जाना कि एक पंथ दो काज, हिंदी में एक अच्छी कहावत है कि एक पंथ दो काज, आपने आपका एक काम करने निकले और दो काम किए आपने। और उसी के पैरेलल अगर आप ये कहें कि किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो हम इन दोनों, अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो दोनों समान चीजें हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि दोनों के संस्कार किस तरह के, दोनों का परिवेश किस तरह का है, दोनों किस तरह की बात को से अपनी बात रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में आप गए तब आपको पता चला कि एक जगह बात की जा रही थी एक पंथ दो काज, कुछ संरचनात्मक बातें करी गई, कुछ क्रिएटिव कुछ कहा गया, और उसी उसी बात को कहने के लिए एक अलग जो फ्रेज है वो है कि एक एक पत्थर मारा आपने और दो पक्षी गिरा दिए। तो वो किस ध्वंसात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो हर हर भाषा जो है वो अपना एक शब्द अपना है, उसका एक बैकग्राउंड लेके आती है। और अगर आप बहुत सारी भाषाएं सीखे हैं, आप संस्कृत भी सीखे हैं, आप इंग्लिश भी सीखे हैं, आप हिंदी भी सीखे हैं, आप विश्व की अलग अलग और भाषा भी सीखे हैं, तो हमें हमारे हमारे जो बाउंड्रीज है, मैं समझता हूँ उनको बहुत वाइड रेंज पे लेके जा सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा विस्तार मिलता है। इस रूप में मैं देखता हूँ कि अगर आप इस चीज में जाते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग अलग 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 भाषाओं का अध्ययन करें। और ये चीजें मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये तब संभव है जब हम लोग पढ़ने पढ़ाने की ओर ध्यान दें, हमारे शब्दों की तरफ ध्यान दें। और स्पेशली जब हम एजुकेशन में हैं, जब हम स्कूल में हैं, तो इस बात पे पूरा ध्यान रखें कि आज हमने एक एक भी नया शब्द क्या सीखा है, एक भी शब्द नया क्या सीखा है, कौन सी भाषा से जुड़े हुए हैं, किस भाषा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से नए शब्द आज हमने सीखे हैं, नए शब्द कहाँ कहाँ से डाले हैं। इन शब्दों पे, इन चीजों पे जब हम काम करते हैं तो हमारा टीचर भी एम्पावर्ड होगा और ज्यादा सक्षम होगा और ज्यादा दक्ष होगा अपने काम को करने के लिए। तभी ये चीजें अच्छे से बन के सामने आएगी। और आपने आज जो बात कही थी कि अब सोशल मीडिया जब है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो बुक्स की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं उसी बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि वो बाधक नहीं है, हम उसको साधक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अभी बहुत संभावनाएं हैं इस बारे में। थैंक यू। सही कहा सर। मेरा अगला प्रश्न राजेश जी से कुछ इसी सब्जेक्ट को लेके होगा। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इफ वी टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट्स वर्क फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। Like you should know the mother tongue, you should be perfect in that, and the basic education, the elementary education should be focused within the mother tongue. As far as the English is concerned or third language is concerned, it should be implemented from the beginning years. True, but it should not be only bilingual now. It should be trilingual. One, the mother tongue. Second, the national language. Third, the global language. So what's your take on this, sir? How national education policy will bridge that gap which we are having in India? For that matter, I would like to just reflect on this particular issue, and even it's a matter of great, analysis for me, because I feel it sounds really great. Government said that we are designing in the curriculum and national NCRT and SCRT, right? Both the agencies are, of course, SCRT in every state. They are working very hard in order to develop books of maths and science in the local language, regional language. But I know it's gonna be very tough. For example, in Jammu and Kashmir, where I'm sitting right now, Jammu, so it is, official language is here Dogri. So Dogri language means maths and science, they say up to class 4, 5 will be in Dogri, undoubtedly. Because children can, the way they can learn in their mother tongue, so nothing is like that. It really hampers the creativity. Sometimes even I feel if a child is compelled to learn concepts in English, then child is really struggling to learn English, right? Whereas if child is learning those concepts in the mother tongue, right, then impact will be different and lasting.
And of course, there are many examples. For example, Sardar Patel Vidyalaya, Delhi, there Hindi is compulsory up to class 4. Hindi is One, compulsory. All the subjects are taught in Hindi. And from 5 onwards, they switch over to English. And they are, means students of Sardar Patel Vidyalaya, they are second to none. They are outstanding. And again, very nicely said by Narenji, that bilingual, just kind of competence, it develops a kind of this humility in people. मैं सही बता रहा हूँ. And it gives a lot of confidence also, because sometimes when I speak in Hindi, जब मैं हिंदी में किसी भी ऐसे मंच से बोलता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती होगी. तो ऐसे कभी कभी अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन पूछ लेते, उनको मैं फिर कहना चाहता हूँ, भैया अंग्रेजी मेरी रोजी रोटी की भाषा है और हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है. मैं आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी हिंदी दोनों में उसी क्या नाम तत्परता के साथ और उसी यानी कौशल के साथ देने का प्रयास कर सकता हूं. और जब मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं. जब मैं हिंदी बोलता हूं तो मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, केवल अपने विद्यार्थियों को प्रेरित प्रोत्साहित करने के लिए कि दोनों भाषाओं पर आप अपना असाधारण अधिकार रखिए. तो उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. अगर क्या नाम ऐसे अगर प्रयास किए जाएं तो बड़ी आसानी से चीजें ऐसी हो जाती हैं. the other day we were talking on maybe telephone. We spoke on this matter that Yes. the learning of nursery or pre-primary or the basic years of education should be in mother tongue, because what It's true. we say 2 ones are 2, 2 twos are 4, नो मन में तो वही चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4. तो ये भाषा का महत्व है. नरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे इस गैप को ब्रिज करेगी, भाषा और शिक्षण, लर्निंग एंड लैंग्वेज, हाउ दे कैन बी मर्ज टुगेदर. आपकी टिप्पणी. प्राथमिक रूप से देखा जाए तो कुलवंत जी, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी चीज है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में हो. बहुत बहुत जो हमने देखा है, जो बच्चों के साथ काम किया है, हम देखते हैं हमारे बच्चे कंटेंट को, सब्जेक्ट को सीखने की बजाय उस भाषा के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत समय तक वो भाषा के साथ संघर्ष करते रहते हैं. और उस भाषा को सीखने के प्रयास में उनका विषय को सीखने का जो काम है वो पीछे रह जाता है. तो ये जरूरी चीज है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा जो है वो हो मातृभाषा में हो. लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ी जा सकती है, वो जरूरी भी है कि हर विषय की अपनी एक मर्यादा है, उसका कंटेंट किस लैंग्वेज में अवेलेबल है. देखिए, मैं जब बात करूं, अगर मैं संस्कृत विषय की बात करूंगा या मैं हिंदी विषय की बात करूंगा या मैं मानविकी शास्त्र की बात करूंगा, तो उन विषयों में ऐसा संभव है, ऐसा संभावना है कि उसमें मातृभाषा में या हिंदी में या अन्य भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल होगा. लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें, जब आप हेल्थ में जा रहे हैं, जब आप अलग अलग विषयों में जा रहे हैं, आप रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको हेल्थ पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स की अपनी एक मर्यादा है. तो उस समय हम ये अपेक्षा करें कि हम साइंस पढ़ेंगे या हम लोग रॉकेट साइंस पढ़ेंगे लेकिन राजस्थानी में पढ़ेंगे, तो वो बहुत बहुत मुश्किल चीज हो जाती है. तो ये एक तरह से यूं मानिए कि स्विच करने जैसा काम है. तो अगर आप विषय विशेषज्ञता की ओर जा रहे हैं, तो हमें उस भाषा को महत्व देना चाहिए, तो इस भाषा में उसकी उत्पत्ति हुई है. अगर मैं वेद पढ़ूंगा, तो वेद में संस्कृत पढ़ करके वेदों का जो ज्ञान ले सकता हूँ, मैं उसके ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन अगर मुझे मिलता है, मैं आई थिंक मैं उस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता जो मैं संस्कृत के वेद को ग्रहण कर सकता हूँ. तो जो विषय इंग्लिश में बना है, उस विषय को ग्रहण करने के लिए मुझे वही लैंग्वेज चाहिए.
ये अलग बात है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, हमारी प्राथमिक शिक्षा या जो फर्स्ट 10 तक का जो एजुकेशन है, वो हम माध्यमिक अपनी मातृभाषा के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञता की जहाँ बात आती है, वहाँ मैं समझता हूँ कि उस जिस विषय के साथ वो जिस भाषा के साथ वो विषय है, उत्पत्ति काल से, उस भाषा में हमें स्विच करना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है वहाँ के लिए। आप ये सोचें कि मैं पंजाबी में, मैं हिंदी इंग्लिश में, मैं फ्रेंच में वेद पढ़ूँगा, तो मैं उसी चीज़ को समझ पाऊँगा। आई थिंक ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। आज हमारे भारत में बाकी विश्वविद्यालयों में जो वेद पढ़ाया जाता है, वो मैक्स मुलर का पढ़ाया जाता है। उसके उनके द्वारा जो व्याख्या करी गई है, वो चीज़ें पढ़ाई जाती है। या कुछ और चीज़ें दयानंद सरस्वती को पढ़ाया जाता है, उनकी जो व्याख्याएँ करी हुई है, शंकराचार्य जी को पढ़ाया जाता है। तो हम इसमें देखें, इसकी जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस जिस मर्यादा से, जिस विषय भाषा से वो विषय निकला है, अगर हम उस भाषा की बारीकियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं समझता हूँ हम उस विषय को अपना नहीं बना सकते, उसको हृदयंगम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर विशेषज्ञता की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसी भाषा को ग्रहण करिए, उसी भाषा में जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का अपना-अपना महत्व है। अधिगम के प्राथमिक दृष्टिकोण को देखा जाए, तो हमें मातृभाषा को देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हम लोग जहाँ माध्यमिक स्तर तक के ज्ञान के लिए है, या हम यूँ माने कि प्राथमिक स्तर तक का ज्ञान है, वहाँ तक के लिए। जब आप ऊपर की क्लासेस में जा रहे हैं, जब आप विशेषज्ञता की स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस विषय का अध्ययन उस विषय में ही किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए राजेश सर, आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। आज के जो एजुकेटर्स हैं, आज के जो शिक्षक हैं, उनको जब बच्चे स्कूल में वापस आए तो बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, जब हमारी चर्चा चल रही है तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि स्कूल अब खुलेंगे मंडे से, तो ये गुड न्यूज है। तो मुझे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों में वो भाषा की शैली, वो भाषा का स्तर कैसे लाऊं वापस, जो प्री कोविड लॉकडाउन था? आपके कमेंट सर। सर अनम्यूट कीजिएगा। So I would like to just share with all the people who are watching us, and I would like to address specifically the teachers, that they can really inspire children like anything by their personal example. So I think there is no greater role model than teacher himself or herself. That's very important. And sometimes I feel teachers have to put in very seriously, right? And language skills are very important. And I always shared teachers of science, teachers of maths, teachers of social studies, they should also try to have that language competence, which is very, very important, right? Because every human being has been gifted with language competence. It's not like the science teacher, no, my subject is science. Why should I be bothered about the language? No, never. One has to be bothered about the language, because language is the carrier, that is the medium through which one can always convey one's thoughts, ideas, and share with the audience. So that's really very important. So teachers must be the role models. The way teachers want their students to be groomed, right? First, they should really take the cause. They should rise up to the occasion. They should just, make the audience enthralled. They should, this inculcate that spark in children. They should have that strong desire in children that, yes, I should try to speak like my teacher, as I feel towards my teacher, Padma Shri Raj Bisaria. He is no more in the world today. I think during COVID, we lost him. Really, whatever, he inspired us like anything. He was such a wonderful teacher. He used to conduct extra classes for 6 hours, 3 hours lecture, and then short break of 15 minutes, then again 3 hours. And every next sentence used to be more linguistically, I'll say more
polished, and it was a marvel, it was a wonder. So that is what I feel. So teachers can inspire this generation, no one else. Let children be inspired by their teachers. And again, today I would like to quote the example of great, this chemistry teacher from Anandale, Mr. Krishna Kumar Menon. And I feel he may be compared with any teacher of English in the country. And he's the master of his subject, chemistry. Because when he used to write, I used to feel, oh my God, goosebumps. I used to tell him, I said, KK, Krishna Kumar, KK, yaar, what to say? You are such a fabulous writer. As if, the soul of some great, this literary maestro descended or just into your body that way. So this is, teachers can inspire the generation. First, teachers, mediocrity, it has no place in the world today. Mediocre teachers cannot create, the great generation minded, right? Only great, enlightened, committed, dedicated, round the clock, who are into how to inspire, how to strengthen the generation, which is at our beck and call. Unless this Josh is there, right? This social commitment is there, we will only discuss. Nothing will happen, because when a teacher opens mouth in the class, the language, knowledge flows. And without uttering a word, children, they imbibe the character of the teacher, right? So, Kulwant sir, through this particular platform, I would like to just make a humble appeal to all the teachers who are watching this program. First, only you can inspire the generation with your commitment, with your dedication, with your language skills. And I'll say, दोनों भाषाओं पर अगर साधारण अधिकार हो, क्योंकि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, और दोनों भाषाओं का जो समन्वय है, दोनों भाषाओं का जो संगम है, समागम है, वो तो जादू करता है। तो वाकई में दोनों भाषाओं पर अधिकार हो और बहुत मजा आता है। ठीक है, तो इसलिए, और बस जैसा मैंने कहा, हमारे जो गुरु जी थे प्रोफेसर MS कुशवाहा साहब, उनको भी आज मैं एक हिसाब से ट्रिब्यूट दे रहा हूं कि जब गुरु जी के घर जाते थे, हिज डॉटर वाज माय बैचमेट प्रार्थना सिंह, एंड ही वाज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी। घर जाते थे तो उनके कहते हैं, सर क्या आपका ये रूम है, इतना बड़ा सा रूम। वन साइड बुक्स ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ही वाज द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी। अदर साइड बिग वॉल ऑफ हिंदी, third side of Sanskrit, and fourth side of Urdu. And he had translated bilkul as the Ashtadhyayi, Parni's Ashtadhyayi, this from Sanskrit to this, English and all. There is so many translation works. He inspired me. Then I also started, translating the Psalm of Life by H.W. Longfellow, right? My Mother at 66 by Kamala Das. So many poems I translated from English to Hindi, Hindi to English. And I wanted to see whether I can do the transcreation. It's not just the translation. So that all the subtle nuances of the language, one language, to be converted into the other language, maintaining its soul, maintaining its pulse. That is the thing. So I will say, teachers, you can do anything. And for that only, great Chanakya said, शिक्षक तो वो शख्सियत है जिसकी की गोद में सृजन और विध्वंस दोनों साथ पलते हैं। तो इसलिए शिक्षकों की जो शख्सियत है उसको मैं फिर से एक बार सलाम करता हूं। मैं अपने सभी गुरुओं को आज अपने तहे दिल से उनको नमन करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं की ओर हमारा ध्यान, मेरे और मेरे सारे जितने सहपाठियों से उनका ध्यान आकर्षित किया और दोनों भाषाओं में अधिकार के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। आज भी खुशी होती है किसी भी मंच से अंग्रेजी में बोलते बोलते अचानक हिंदी में मैं और मेरे सारे सहपाठी चले जाते हैं।
और हिंदी से बोलते बोलते अचानक अंग्रेजी में चले आते हैं, और जब महान लोगों को कोट करने की नौबत आती है तो फिर मजा ही आ जाता है। इतना सारा कंठस्थ है। तो मैं एक बार फिर से सारे शिक्षकों से यही अपील करूंगा, विशेष रूप से अंग्रेजी हिंदी के शिक्षकों से, कि और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अब क्या बताऊं, समय की क्या नाम थोड़ी सी यानी कि समय का भाव है, वरना जो हमारे जो आंचलिक चीजें हैं उनका भी बड़ा ही महात्म है। जैसे कि हिंदी में मुझे लगता है आल्हा वगैरह हिंदी शिक्षकों को सुनाना चाहिए। आल्हा वगैरह सुनाने से भी एक कैसा माहौल तैयार होता है। अब मैं तो जैसे कि अगर कहूं, बातन बातन बतबड़ हुई गई और बातन मा बाढ़ी रार और दोनों दल मा हल्ला हुई गो छत्रेन खाए चलाई तलवार और पैदल के संग पैदल भिड़ गए और असवारन से असवार और खटखट खटखट तेगा बाजे चहमुह तोड़ चले तलवार। और उन्होंने खाने पीने की बात पे आए तो आल्हा कहते हैं, बड़ बड़ चमचा है भोबे मां जामे नौ मन दार अमाए और ऐसे सूरवीर महोबे मां 10-10 चमचा जाए चढ़ाए। वाकई में आल्हा मेरा मन करता है मैं उसे पढ़ूं, कंठस्थ करूं और बच्चों को बताऊं कि हमारी जो इस तरह की आंचलिक चीजें उनका कितना विशेष महात्मा है, किस तरीके से वीर रस से ओतप्रोत हैं और कैसे एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है जब भी हम कोई 4 पंक्तियों का पाठ करें। चलिए सर, बहुत ही आनंद आया और मैं चाहूंगा शिक्षक, उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। शिक्षक खुद ही ऑफकोर्स यानी निश्चित रूप से हमें पहले शिक्षक होने के नाते खुद संपन्न होना पड़ेगा कई भाषाओं में, तभी हम अपने विद्यार्थियों को प्रेरित प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जैसे नरेंद्र जी ने आज बहुत ही खूबसूरत ढंग से जिस तरीके से यानी कि भाषा से जुड़े हुए जितने भी उसके अवयव हैं, अंग हैं, इकाइयां हैं, उन सब के बारे में जो परिचर्चा करी, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम और भाषा से संबंधित और दोनों भाषाओं पर एक अधिकार की जो बात उठी और जिस तरीके से राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति के साथ जो आजकल का जो जिस तरीके से व्याप्त समाज में चारों ओर, बस मुझे लगता है कि शिक्षक ही बच्चों को वो दिशा, वो सोच, वो मानसिकता प्रदान कर सकते हैं। खुद खूब अध्ययन करते रहें और बच्चों को और इस यानी युवा जो हमारी पीढ़ी है इसको ऐसे प्रेरित प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर, आपका अभिभावकों के लिए क्या संदेश रहेगा इस चर्चा के बाद कि अपने बच्चे जब वापस स्कूल में आए या वो वापस अपने रूटीन में आए तब उनकी लैंग्वेज के स्किल्स को वापस लाने के लिए उनको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए, उनको क्या अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे? प्लीज सर। कुलवंत सर, देखिए पहली बात तो हमें ये एक तरह से मान के चलना पड़ेगा कि जब हम लोग ई कंटेंट पे गए थे, जब हम लोग ई कक्षा पे गए थे, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे गए थे, तो वो अब अगर हमारी रियल क्लासेस, एक्चुअल क्लासेस चलती भी रहती हैं, तो भी वो जो पुराना पैटर्न हमारा है, हमारा जो कंटेंट है, वीडियो क्लासेस हमारी है, वो इसके पैरेलल बनी रहेगी। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और वो साथ-साथ क्योंकि रहेगी, तो हमारा अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ भी रहेगा। तो अभिभावक जो हैं, वो इस बात पे ध्यान दें, तो जब क्योंकि बच्चे के पास डिजिटल इक्विपमेंट है और वो उसमें बुक्स पढ़ रहे हैं या उसमें सोशल मीडिया पे जा रहे हैं या अलग-अलग और प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, तो उस समय वो हमारे उसका इक्विपमेंट का उपयोग कैसे कर रहे हैं, मैं इस बात पे जानना चाहता हूँ। और इस पे थोड़ा-सा हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। और एक बात और जोड़ दूँ कि उनको प्यार से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। कुलवंत जी, हम एक छोटा-सा उदाहरण देके मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा जो डॉक्टर होता है, सपोज़ करिए कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट है, तो क्या डॉक्टर कभी ऐसा काम कर सकता है कि वो स्कॉल्डिंग वे में उससे बात करे और उससे ये बोले कि तुम फटाफट ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, डाँट के उससे कहे कि आप जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? क्या कभी हमारा
डॉक्टर ऐसा कर सकता है और उससे क्या ये अपेक्षा की जा सकती है वो ऐसा करेगा और उसके ऐसा करने से वो पेशेंट ठीक भी हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट है, बच्चा जो है, वो असल में वो सीखने के लिए ही आया है, लेकिन वो प्यार चाहता है, वो स्नेह चाहता है। अगर हमारा टीचर, हमारा अभिभावक उसके साथ किस किस स्तर पे जाकर के अटैच होता है, उससे जुड़ा किस रूप में है, तब मैं ये मान सकता हूँ कि हमारी भाषा अपने आप जाएगी उसके साथ। हमारी भाषा अपने आप सुधरेगी, अपने आप परिवर्तित होगी। भाषा का तो नियम ही यही है, भाषा का स्वभाव ही यही है कि भाषा एक से जाती है, दूसरे में ट्रांज़ैक्ट होती है। लेकिन उसके साथ आपका स्नेह है या नहीं है? तो टीचर हमारा अगर संपन्न है और अगर वो स्नेह के साथ अपना काम कर रहा है, तो मैं बहुत सुनिश्चित हूँ इस बात के लिए, बहुत आश्वस्त हूँ कि उसके शब्दों में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। वो बहुत पुराने लेवल पे आएँगे या यूँ मानिए कि वो भाषा में बहुत अच्छे स्तर पे जाएँगे, अगर हम इन 2 चीज़ों पे काम कर पाते हैं। फर्स्ट ये धन्यवाद सर। कि हमारा जो शिक्षक है वो समृद्ध हो, वो बहुत अच्छे से जुड़ा हो और दूसरा उसमें स्नेह हो, उसमें आत्मीयता। जी, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आप दोनों विद्वानों को, हिंदी के विद्वान, इंग्लिश के एक्सीलेंट ऑरेटर, एक्सीलेंट स्पीकर्स, राजेश राठौड़ जी और नरेंद्र कुमार जी, दोनों को धन्यवाद दूंगा। दर्शकों से अनुरोध है, इस कार्यक्रम के बाद भी हर शनिवार शाम को 7 बजे शिक्षा पे परिचर्चा जारी रहेगी, जिसमें इन्हीं जैसे विद्वान, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स को हम लोग इनवाइट करते रहेंगे और अलग अलग एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। और जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यू भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर।